क्या मैम? यस सर। चलिए नेक्स्ट। रुके रुके हाँ। सिर्फ तन्मय, राहुल जी और ये। तन्मय, राहुल और यस। लुक एट दिस कैमरा। यहाँ पे मैम या मैम यस या मैम। होल्ड सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार ये फ्रेम हो जाए। यहाँ पे मैम। यस आइए। जय माता। एक मिनट सिंगल लाइन नहीं भैया, आपके पूरा वो करना। सबका 1 मिनट मैम। 1 मिनट ग्रुप फोटो 1 पिक्चर। मैंने एक साथ ग्रुप एक मिनट सर तन्मय सर एक फोटो तन्मय एक मिनट एक साथ। यस ऐसे रहना बिल्कुल। यहाँ पे देखिए सर पिक्चर मैम, यहाँ पे ऑल ऑफ यू। काला वाला Depth in the music and depth in the story as well. But nowadays you see, I mean, all kind of films which are made are little artificial. There is no depth in the music or story, or there is complexity. I agree with you. I agree with you. There is no depth in any music. Only the music which is of that era, and yes, if you reprise it, you do it well, it's fantastic. But any of the music that I hear, that's again my opinion. I don't even listen to it because मेरे को समझ में भी नहीं आता कि आदमी लिरिक्स क्या बोल रहा है, ऐसी भाषा कैसे बात करता है. But that's my opinion. I don't say that everybody should look out कि ऐसी opinion होनी चाहिए. But there is absolutely no depth. उन दिनों में जब गाने होते थे, you would as an actor, you used to feel कि वो गाने में है क्या, और फिर जब दर्शाया जाता था, people used to really feel, go with that emotion. यहाँ तो कुछ कट ऐसा बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, that you don't even have the time to realize कि what are the emotions और बोल क्या रहे हैं. So I honestly don't like the kind of music that is there. There are very few songs that I would say, yes, I would like to hear it again. Sir, even the characters are very complex. Dating characters, hero and what you talk about. There is no simplicity factor. I mean, people can't connect with the character as such. Sir, जैसे लाइफ है वैसे ही चल रहा है सब लोगों का. There are more complications and there is more layers to characters. So I think there are a lot of directors that are able to bring that out in the stories today. But when you have too much on the plate और आप उस चीज़ को सही तरीके से दर्शा नहीं सकते या आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो definitely those scripts are at fault. But मैं इतना तो जानता हूँ कि there are lot of directors जो आजकल जो काम कर रहे हैं, I am finding it, मेरे लिए this is more exciting कि आज मैं ऐसी टाइप की फिल्मों में मैं काम करने लगा हूँ मैं, because एक ग्रोथ होती है ना वहाँ से in the 90s whatever, because we can't recreate that kind of cinema or that kind of stories and things like that. So now we try and do this kind of complicated characters, and that's the way I want to try and develop myself, my skills. वो बताएं. Sorry? पहले तो मैं ये म्यूजिक पे ये कहना चाहूँगी, इज दिस वर्किंग? इट्स नॉट ऑन.
Your question about music. Since I'm very closely associated with music, I run a company called Lucky's Music Club. I promote fresh talent, new talent in the music world. Also, we do shows with already existing talent and the veterans in the music industry. तो to your question, I would like to say कि ऐसा नहीं है कि आजकल की movies में सारी music खराब है या lyrics खराब है. Like my favorite album is Kabir Singh. I love the album. I love all the songs in Kabir Singh. I love the music. I love the lyrics and the feel. जो ये महसूस कराता है हमें ये म्यूजिक ऑफ कबीर सिंह. सो देयर आर मूवीज, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड लिरिसिस्ट्स हैव टू बी रियली केयरफुल कि वो दे कीप दिस काइंड ऑफ मीनिंग इन देयर सॉन्ग्स. वो जो फनी टपोरी जैसे गाने होते हैं वो नहीं जमते हैं ऑफकोर्स हमें. वी लाइक मीनिंगफुल म्यूजिक एंड मेलोडियस म्यूजिक विच वी डू हैव नाउअडेज, बट I don't know. Depends on the audience. I don't know. कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है. So तो TikTok पे भी तो स्टार बनते लोग. हाँ. So I think meaningful music can exist. Depends on the demand. अगर demand होगा तो supply होगा. You know. So if we make these kind of albums hit, जो टपोरी जैसे गाने हैं, तो फिर आपको वो पैसे गाने मिलेंगे. और अगर ये एल्बम टॉप ऑफ द चार्ट्स करेंगे जो मेलोडियस मीनिंगफुल सॉन्ग्स है, तो फिर ये आपको मिलेगा, यू नो, फ्रॉम द इंडस्ट्री. इट डिपेंड्स व्हाट द ट्रेंड इज, एंड आई थिंक वी शुड कीप द ट्रेंड अप ऑफ मेलोडियस म्यूजिक. राहुल, मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से. जैसे फिल्म में हमने देखा, यू नो, यू आर टेकिंग ड्रग्स, और पिछले दिनों ड्रग्स को लेकर इंडस्ट्री में काफी थोड़ा माहौल खराब हुआ था. जब जिस तरह का चीजें चल रही थी, तो आपके जहन में भी आया है, मतलब मेरी आने वाली जो फिल्म है. सर, ये तो कोविड से पहले हम लोगों ने काम किया था. आप सही है, बट फिर भी जिस तरह के इंडस्ट्री में गोइंग ऑन की ड्रग इज आल्सो देयर इन द इंडस्ट्री, लोग यहाँ पर लेते हैं, और आप वो कैरेक्टर निभा रहे हैं, सर कैरेक्टर. बट डिड यू फील एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी ऑफ योर फिल्म इज आल्सो डीलिंग विद दैट, स्पेशली यू विद द कैरेक्टर एक्टर. At any point of time, you felt कि यार ये कैरेक्टर है, पता नहीं how will people take. ये तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे हम लोग उसको फिल्मों में दर्शाते हैं या एनीवेयर, ये तो कैरेक्टर्स रियल हैं. दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर एवरीवेयर एंड बिन फॉरएवर. एंड ये जाने वाला नहीं है. कोई कुछ भी कह दे, वो कहीं ना कहीं अपने तरफ से कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं. तो एज अ एक्टर मेरा काम है टू प्ले दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स और them being playing those kind of characters with me. ये कहानी वैसे है, वरना it becomes very very difficult. कोई भी फिल्म, every film cannot just be a family film. Every film cannot be like जैसे किसी पंडित जी या किसी का भी वो कहानी हम लोग नहीं कर सकते हैं अभी. People need that kind of entertainment, and more than enough. They go beyond वो drugs या arms या prostitution पे, they go into those kind of characters पे वो किस वजह से उन हालातों में वो लोग वहाँ पे पकड़े जाते हैं या जो कुछ भी होता है, and then you bring those characters and the stories out. तो we don't, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ that I want to play a drug guy or I want to feel, मैं देखता हूँ कि ये टाइप के कैरेक्टर्स जो आते हैं उनकी क्या वजह होती है, उनकी मानसिकता क्या होती है, ये सब चीज़ें करने के लिए. एंड दैट इज ओनली गोइंग टू बी डन फॉर मी टू इन दिस काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म. फिल्में हो, वेब सीरीज हो, जो कुछ भी हो, लोग करते हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. अब यस, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को ठीक लगेगा. दैट एवरीबडी इज गोइंग टू हैव दैट काइंड ऑफ एन ओपिनियन, एंड दे शुड ऑल्सो. They should also, but I would rather say कि एक बारी people get to know more about this film, then they will judge actually what the story is and what the story is trying to tell. Also, what is the opinion about your first co-star who has gone through a lot in life? She's a great girl there. She had an accident, she came out of it. And she's doing a lot of social service and a lot of things. I think she's absolutely great. You know, लोग कुछ भी कहते हैं उनके बारे में,
you know, because she's their opinion of what is supposed to be beauty or not. But I honestly think that Anu has done great work and continuously the kind of path जो उसने ली हुई है वो बहुत ही खूबसूरत path है. And I will always wish her all the very best जब वो ये सब काम करना चाहती है. If you don't want to do films, that is your call. कोई बड़ी बात नहीं होती. फिल्मों में अगर कोई काम नहीं करता है तो इतनी बड़ी बात उस चीज़ को बनाना, I think that is absolutely wrong. It's your choice. काम करना है या नहीं करना है. So जो बात वो ले रही है, I think very good. मैं उसके साथ कुछ shows करता हूँ. I've gone and done events with her even in London and Birmingham and things like that. She's very good, and even in Kapil Sharma show, I think so. I think she's very good there. There's no problem. Today, Bengali films are doing a lot of good work. Would you like to be a part of Bengali? पहले हिंदी फिल्मों में तो काम मिल जाए. बंगाली की बात कर रहे हो यार. आएगा तो करेंगे of course. But I'm थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ मैं. कुछ लोग आ रहे हैं काम करने के लिए तो पहले यहाँ से कर लें. But yes, करेंगे. Okay. थैंक यू. ट्रेलर की अगर मैं बात करूँ, गाने की बात करूँ, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ब्यूटीफुल लगा. तो पहले आप बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस विद संयोनी. संयोनी के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. एंड जो भी आपने देखा वो ट्रेलर नहीं, वो शो रील था. ट्रेलर अभी आना बाकी है. उसमें आपको फिर और नए चीज़ें दिखेगी जो हमने अभी आपने नहीं देखी. एंड एज यू नो कि इट्स अ म्यूज़िकल थ्रिलर, सो थ्रिलर के लिए थ्रिलर फिल्म देखना पड़ेगा. और रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस तो एकदम ड्रीम कम ट्रू वाला है. क्योंकि एक मैं दिल्ली में कहाँ स्ट्रीट प्ले कर रहा था जो मैंने खुद अपनी इच्छा से ज्वाइन किया था कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए. क्योंकि कैमरा फेसिंग एक अलग चीज़ होती है, कॉन्फिडेंट एक अलग चीज़ होती है. हम यहाँ रीटेक्स दे सकते हैं, वहाँ नहीं दे सकते. और मैंने बहुत सीखा उनसे. अरविंद गौर सर है, आई गेस उनके साथ मैंने वर्कशॉप की थी. कुछ एक्सरसाइजें होती है वो होती है. एंड देन मैं मुंबई जब आया तब मैंने यहाँ जेफ गोल्डबर्ग सर के साथ आई अटेंडेड जेफ गोल्डबर्ग्स मेथड एक्टिंग स्टूडियो ऑल्सो. तो मेरा पहले से ही हमेशा थिएटर वालों का ही मैं फॉलो करता रहा हूँ. और अगर कमर्शियल्स में देखें तो शाहरुख सर है ही, और दिल्ली से हूँ तो फिर तो वो है ही गारंटेड आइडल हमारे. बट संयोनी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. अभी जैसे एक्शन सीन्स खुद करें, वो मतलब ऐसे कई एक्सपीरियंस है जो उस वक्त लग रहा था ये क्या कर रहा हूँ, बट ठीक है कि अब अच्छा लग रहा है. एक्शन सीन है, रोमांटिक सीन है, रोमांस है, एक्शन है, थ्रिलर है इसमें, और म्यूज़िकल है. बेस्ट पार्ट कि कई गाने ऐसे हैं जो आपको फिल्म में वीडियो वाइज नहीं दिखेंगे. स्पेशली दो गाने तो सिर्फ सीन्स के लिए बना रखे हैं. तो वो सीन्स के लिए गाने क्रिएट करना, तभी हम म्यूज़िकल बोल पा रहे हैं. कि ज़रूरी नहीं कि आप वीडियोस देखोगे कि जैसे एक दो गाने का वीडियोस देखोगे आप, बट बाकी बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए भी म्यूज़िक बनाया गया है, तभी हम म्यूज़िकल बोल रहे हैं. जी. क्या चैलेंज था आपके लिए जब मैं राहुल रॉय की बात करता हूँ? वो अपने आप में एक शख्सियत है, और है. क्या सीखने को मिला और क्या नर्वसनेस थी और कैसा एक्सपीरियंस था? लकीली हमने पहले वर्कशॉप्स काफ़ी कर ली थी, तो सेट पे तो इतना वी वर लाइक अ फैमिली. और उन्होंने बहुत कंफर्टेबल, उनको पता था न्यू कमर हूँ. पहले दिन देख लिया कि थोड़ी बहुत मेरी नर्वसनेस देख ली थी, तो उन्होंने फिर बाद में वो खुद ही, दैट्स हिज बेस्ट पार्ट, कि वो खुद कंफर्टेबल फिर कराने में लग जाते हैं. तो वो सबसे बेस्ट पार्ट था. एंड सेकंड थिंग कि जब मुझे याद है काम है VCR में इनको देख रहा था, वो चाहत की ज़रूरत है. बचपन में स्कूल से आते ही बैग रख के हम नेबर के घर चले जाते थे. सिर्फ आशिकी बार पता नहीं 1-2 साल देखी होगी मैंने तो फिर बस हाँ, वो नर्वसनेस उसका ही था. नर्वसनेस उसी का था कि कहाँ मैं VCR में देख रहा था यार, कहाँ मैं काम कर रहा हूँ. तो पहले वो था. एंड देन सेम योगराज सिंह जी के साथ भी ये था. उनका एक अलग और है पंजाब में जब हम शूट कर रहे थे, क्योंकि मैं पंजाबी मूवीज़ भी बहुत देखता हूँ, तो मुझे उनके साथ सबसे ज़्यादा डर भी लगा था. क्या थिएटर में रिलीज होने
It was supposed to go on in theaters, but I think कोविड ने सबका ही गेम खराब कर दिया. So I think now the producers are thinking to go for OTT. But अगर थिएटिकल अच्छा रिस्पॉन्स अगर अभी तक आता तो शायद हम अभी भी ऑप्शंस खुले रखते हैं. बट टिल नाउ, और ये भी ज़रूरी है, सेफ्टी भी ज़रूरी है, तो ठीक है. बॉलीवुड में काम करने की इच्छा रखते हैं आप, हर कोई करते हैं. इन दिनों पिछले कुछ एक दिनों से देखते हैं जिस तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, ड्रग्स में नाम आ रहे हैं, सुसाइड की बातें आ रही हैं, ढेरों सारी. कैसे देखते हैं आप? उसके बाद फिर आप किस तरह से सोचते हैं कि यहाँ काम करना चाहिए, कैसे इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, किन लोगों से मिलना चाहिए, जिनका नाम है क्या उनसे बिल्कुल दूरियाँ बना के रखना चाहिए? नहीं, कैसे सोचते हैं सर? नाम बना के कौन देता है? ऑडियंस. जो आज अभी आप कह रहे हो कि जिनके नाम है, तो वो नाम किसने बनाए? हम लोगों ने ही तो बनाए. हम इन तो हर शुक्रवार टिकट खरीद के जा रहे थे. जिनके नाम आए हैं, तो जिनके नाम आए हैं, बट अभी सब कोई गया तो नहीं है. जो गए थे वो भी बाहर आ गए अब तो फिर तो वो ठीक है. बट हाँ, वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो आपने सुशांत के बारे में पूछा. क्योंकि देखा जाए तो आई यूज्ड टू लुक कि लाइक जैसे एक शाहरुख खान है, सुशांत है, अक्षय सर है, तो हम देखते थे. मतलब मैं तो बहुत बड़ा फिल्मी कीड़ा था. मैं तो मतलब वांटेड देख के निकला था, तो वो सलमान सर जैसा वो ब्लू ब्रेसलेट भी पहन लिया था. मैं तो ऐसा फिल्मी कीड़ा था. तो मेरे लिए तो वो एक झटका ही था सुशांत का जब न्यूज़ आया था. एंड मैं लास्ट ईयर मिला भी था उनसे थ्रू मोहम्मद सर. तब उन्होंने बहुत अच्छे बल्कि गाइडेंस दी थी मुझे कि ब्रो यू नीड टू हैव पेशेंस. इस इंडस्ट्री में पेशेंस इज़ द की. तो मेरे बस दिमाग वो उन दिनों बस मेरे दिमाग में ये था कि ब्रो आप मुझे गाइड कर रहे हो, पेशेंस इज़ द की. तो कोविड के टाइम में सबने ही पेशेंस दिखाया है, तो ये गलत हुआ है बहुत. आई रियली मिस हिम. बट जो अब बाकी चीज़ें आई है सर, वो तो हर इंडस्ट्री में है. किस इंडस्ट्री में नहीं है? रही बात नेपोटिज्म जो आप पूछ रहे थे, इन गोइंग जो डिबेट चल रही है, वो मेरे हिसाब से अभी मुझे भी एक चांस मिल गया है, उनको भी एक चांस मिलता है. सेकंड चांस आपको अपने टैलेंट से मिलेगा, वो भी ऑडियंस के ऊपर है. दैट्स इट. तो वो मेरे हिसाब से आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग कि बस हाँ फर्स्ट चांस थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा बाद में होता है किसी के लिए. बट सेकंड चांस वो ऑडियंस देगी, वो किसी का फादर भी नहीं दे सकता. वो देता भी रहेगा तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा, वो कहीं हुए भी. तो तन्मय जी, क्योंकि अब आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपकी मूवी आ रही है, कौन कौन से ऐसे एक्टर हैं जो आपके लिए आइडियल हैं, जिन्हें आप मानते हैं कि मैं इनकी फिल्में देखकर बड़ा हुआ और इन्हें फॉलो करता हूँ? सर बिफोर डूइंग थिएटर आइडल्स मेरे शाहरुख सर एंड ऑल, तो वो आज भी है. बट आफ्टर जब वो स्ट्रीट प्ले करे, थिएटर का थोड़ा नॉलेज आया, तब थोड़ा एक्टिंग के हिसाब से भी आइडल्स चेंज हुए या एड ऑन्स हुए. कि मनोज वाजपेयी सर, इरफान सर थे, नसरुद्दीन शाह सर है, अनुपम खेर सर है. क्योंकि वो मुझे याद है, मैं श्री राम सेंटर दिल्ली में नुक्कड़ नाटक कर रहा था, तो वहीं पर ही उनकी फ़ोटोज़ भी लगी हुई थी. तो वहीं से तो आइडल्स एड ऑन मेरे बहुत होते हैं एक्टिंग में. कि बनना जैसे कोई, यू नीड टू हैव अ चार्म लाइक शाहरुख सर, यू नीड टू हैव अ एक्शन लाइक अक्षय सर, यू नीड टू हैव अ स्टाइल लाइक अ सलमान सर. वो हम यंगस्टर्स में होता है. बट जब थिएटर के बाद थोड़े आइडियोलॉजी बड़ी चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट के लेके, कि ओके क्योंकि तब हम इंट्रोड्यूस नहीं थे, तब हम वो कमर्शियल सिनेमा से इंट्रोड्यूस थे. एट द एंड ऑफ द डे चाहे नवाजुद्दीन सर हो, दे चेंज द सीन ऑफ द इंडस्ट्री. और ऑडियंस ने जब एक्सेप्ट कर लिया तभी सीन चेंज हुआ, उससे पहले नहीं हो रहे थे. चलिए, थैंक यू सो मच सर. ऑलराइट, सो कांग्रेचुलेशन सयोनी के लिए. जिस तरह से हमने गाना देखा, कुछ झलकियाँ भी देखी, ट्रेलर का ट्रेलर आने वाला है, तो आप बहुत ही ऑसम है, बहुत ही फ्रेश लग रहा है. सो एज एन प्रोड्यूसर बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस. बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन यूज़ किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, पहले तो ये जानना चाहिए. कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो एनरिचिंग
fulfilling. As a producer, कोशिश यही रहती है कि हम कुछ नया लाएं ऑडियंस के लिए और फ्रेश लाएं. So it was great to get the new star cast, fresh look, Tanmay Singh and Muskan, with a great passionate director like Nitin. And of course, iska jo also plus point hai, selling point, USP of this film is the music and this song Sayoni. It is a great song from the 90s and from the band Junoon. It was so popular that it was almost like a national anthem. 90s में बहुत पॉपुलर था. अब इसी सॉन्ग को रिक्रिएट करना, रिप्राइज करना और फ्रेश न्यू पैकेज में सामने लाना वाज अ बिग चैलेंज. और बिकॉज इट कुड गो ईदर वे. लोग कंपेयर करते हैं और उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए था कि भाई नहीं, पुराना गाना ही बेटर था. तो ज़रूरी था कि हम इसको ऐसे लाएं कि एवरीबडी लाइक्स इट एंड इवन मोर देन द ओरिजिनल. तो ये अरिजीत सिंह ने रेंडर किया है एंड ही हैज़ डन अ ब्यूटिफुल जॉब. जॉय अंजन की म्यूज़िक है एंड ऑफ कोर्स ओरिजिनल इज़ जुनून बैंड. So it's in a whole fresh new package. It's been recreated and brought to you as Sayoni, the song and the film. The film is also named after the song Sayoni. As a producer, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सेट पे, लोकेशन पर, बजट का, आर्टिस्ट का, जी, उनकी डेट का. तो एज एन प्रोड्यूसर कितना प्रेशर होता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को मैनेज करना एंड देन फिल्म को रिलीज़ कराना. एज अ प्रोड्यूसर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंधों पर. वी आर शोल्डरिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. पूरा बजटिंग करना, लॉजिस्टिक्स करना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, गेटिंग द डायरेक्टर ऑन बोर्ड एंड देन द आर्टिस्ट एंड द टेक्नीशियंस, द म्यूज़िक. सो इट इज़ लाइक गेटिंग द होल film together in the beginning with trust and faith. भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई, और अपने आप पे इतना यकीन होना चाहिए कि हमने राइट चॉइस ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर की है या हमने राइट चॉइस ऑफ आर्टिस्ट की है. और स्क्रिप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ द स्क्रिप्ट. So if the content is not good, then nothing is good. But if your content is good and then you work hard towards it, then you have a sure shot winner. तो हमें पता था कि ये कंटेंट बहुत मजबूत है. तो उस हिसाब से हमने ये कंटेंट लिया, डायरेक्टर लिया एंड कास्ट लिया and created, and we managed to beautifully make this film. Not only in India, it's shot in Dubai and Ukraine, Russia. So it's a whole new package and locations that nobody has ever seen before. तो बहुत मेहनत की है और जो अभी एंड पिक्चर है and the product, we are loving ourselves. So I'm sure everybody will love it. So फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है या OTT प्लेटफॉर्म पर, क्या कुछ बातें चल रही हैं, कब तक ये रिलीज होगी, अगर कुछ आप बता? ये सबसे पहले तो हमें म्यूज़िक रिलीज़ करनी थी. ऑफ कोर्स टॉक्स आर ऑन अबाउट द फिल्म रिलीज़ एंड द प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग. लेकिन हमें लगा कि बिकॉज द USP इज़ द म्यूज़िक, so we didn't want to wait and we wanted to release the music step by step. ये सिर्फ सयोनी गाना इसका हिट नहीं है. All the other songs that are in this film on the charts are fabulous songs because we have singers like Jubin Nautiyal, Jyoti Nuran, Mika Singh and all these great singers, legendary singers who have done songs for the film. Or we have a whole plan of bringing the songs one by one, releasing them one by one. It's not going to be overnight. It's over a period of November and December that we're going to be releasing the music because each song is a winner. So we have a whole plan of releasing the music and then finally revealing the film to everybody. And I'm sure by then we'll have the best decision locked. क्योंकि आज हमने गाना देखा, सो आने वाले दिनों में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी फिल्म के लिए, क्योंकि मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो अभी फिलहाल कोविड है. सो आने वाले दिनों में किस तरह की हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखने को मिलने वाली है आपकी तरफ से? देखो, कोविड को मद्देनज़र रखते हुए और इन टाइम्स को, कोरोना टाइम्स को रखते हुए हम आज इतना बड़ा हमने वो किया है म्यूज़िक लॉन्च, जैसे सॉन्ग लॉन्च ऑफ सयोनी. Sayoni in less than 24 hours has hit 3.5 million views and counting.
अभी तक it must be 3.6 or 3.7. We haven't seen the latest numbers, but it's climbing and very steadily. तो ये इससे हौसला हो रहा है एंड हौसला अफजाई होती है कि भाई we've done the right thing and we've got a winning product in our hands. आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इंटरव्यूज़ रखे, सब आए तो ऐसा लग रहा था कि कोरोना है ही नहीं. मतलब we've gone back to our old ways of launches and premieres and mahurats, and I'm hoping and praying that it comes back to the same scenario in our music industry and film industry soon. एज ए प्रोड्यूसर आप जिस तरह से फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़े लेवल पर फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है. ई सीरीज का है, अजीत सिंह ने आवाज़ दी है, आपने ब्यूटीफुल लोकेशन यूज़ किया है. सो जो स्टार कास्ट हम देख रहे हैं बहुत ही फ्रेश एंड यूथ को आपने यूज़ किया है. सो कोई पर्टिकुलर ये रीज़न कोई कि आपने फ्रेश एंड यूथ को यूज़ किया? सो तो आप बहुत सारी फिल्में हमने देखी है जी, सभी इंडस्ट्री में आपके दोस्त हैं. अगर मैं शाहरुख खान जी से लेकर हर किसी की बात करूँ जी, कोई खास वजह यूथ एंड फ्रेश को रखा आपने? जी, ये स्क्रिप्ट ऐसा था. ये स्क्रिप्ट ऐसा था विच कॉल्ड फॉर न्यू टैलेंट, फ्रेश टैलेंट. और जो हमारे डायरेक्टर हैं नितिन, ही हैड अ सर्टेन विजन एज वेल. ही वांटेड द स्क्रिप्ट को लेकर जो उन्हें टैलेंट की ज़रूरत थी was this fresh talent जो एक्शन में भी he would be good, रोमांस को लेकर he would be good, and somebody with a matching passion. जो डायरेक्टर का पैशन होता है, अगर वो एक्टर से नहीं मिलता मैच करने के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है. तो यहाँ पर ये द स्क्रिप्ट डिमांडेड अ फ्रेश न्यू फेस जो है हमारे पास तन्मय सिंह. तो he matched the passion and the aggression and the zeal to work along with the director and the producer. So he was a great choice. जैसे कि आपने देखा in the show reel, he's done a fabulous job. तो एक तो ये था कि the script demanded fresh new faces. तो we needed fresh new faces. अगर script demand करता कि it needed a star or an actor who has been there and who has proved his worth and who has had many hits behind him, so of course it would be any of our dear friends like Salman, Shah Rukh, and but ये script ऐसा था that needed fresh faces. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. गुड लक. Thank you so much. ओके सो मैडम, And this is what platform na? INS. INS. Sir. Good to see you. What do you think is the challenging part? You know, when we talk about filmmaking, and your family belongs to this industry. I mean, they have done so many things in terms of organizing events. I would say, you know, award function. There's so many things which is done by your family. Why you chose to be a producer? It's what I do best, and it's what I have seen best. All my growing up years as a child, I have sat on film sets, films produced by my grandfather, my Dadaji, Abdul Karim Nadiadwala. He was called Seth Ji in the industry. And then my father, Ibrahim Nadiadwala. So, बचपन से हम इन्हीं के सेट्स पर बैठते आए हैं, देखते आए हैं, शूटिंग्स, स्टार्स, और यही माहौल रहा है एज इन अ वर्क एटमॉस्फेयर. तो जाहिर सी बात थी कि इट इज़ इन द ब्लड. सो आई एम नॉट सरप्राइज दैट आई हैव लॉन्च माई ओन बैनर एंड माई ओन प्रोडक्शन. इंडस्ट्री में इतना लंबा वक्त गुजारने के बावजूद, जैसे आपने अभी जिक्र किया, यू नो, I was hearing, you know, time when you were discussing a press conference, you're talking about Mr. Bachchan, you're talking about, you know, the bond we share. जी. Do you agree there is no lifetime friend in the industry when we talk about business? Lifetime friend, अभी it's a very debatable concept. Friend क्या होता है? Friend doesn't have to prove he is a friend that सारा टाइम साथ में हो या सारा टाइम साथ में बैठे रहें. हमारा जो बॉन्ड है विद द फिल्म इंडस्ट्री एंड द स्टार्स एंड द एक्टर्स, वो ये है कि हम शायद रोज़ नहीं मिलें, लेकिन जब हम फ़ोन उठाकर बात करते हैं या जब हमें ज़रूरत होती है या जब ज़रूरत पड़ती है, सिचुएशन कॉल्स फॉर द फैक्ट,
that we are required to be together, तो फिर सब आ जाते हैं and everybody is there. So चाहे बच्चन सर हो या शाहरुख हो या सलमान हो या the new age generation हो like Tiger and you know they've all grown up. वो एक जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे you know हमारे जो 7 colleagues थे वो you know शाहरुख एंड सलमान. अब जब हमारे बच्चे बड़े हुए हैं their colleagues are Tiger Shroff. So वो साथ में बड़े हो रहे हैं and Rin Singh who is Danny Denzongpa's son and तो ये सारे बच्चे साथ में बड़े हो रहे हैं. तो it just goes from generation to generation and हमें कभी नहीं लगा कि किसी को प्रूव करना चाहिए कि they are friends with us because with us हमारा relationship जो रहा है इंडस्ट्री में with all चाहे not only just the stars चाहे directors हो चाहे technicians हो या म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो या म्यूज़िक इंडस्ट्री हो सिंगर्स हो वी आर फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम. हम रोज़ पार्टी करते हैं साथ में, हम बैठना उठना है साथ में. सो आई थिंक वी ऑल स्टक टुगेदर एंड इट्स बिन अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर अस. As you mentioned this right now, you have spoken about Shah Rukh, Salman. Is there a possibility we'll see, you know, in the upcoming days where you'll be promoting the music of the film? Shah Rukh coming in the picture, promoting it, you know. See, as friends, we don't take advantage of the fact that Shah Rukh is close to us and his family, and so we have to call him to do this. नहीं, आज वो दुबई में हैं, वो IPL के साथ बिजी हैं, IPL मैचेस चल रही हैं, वो अपनी टीम चला रहे हैं, उनकी टीम को हमने भी मैनेज किया है, कोलकाता नाइट राइडर्स, you know, Cineyug has managed the team, and so we understand each other. We will only ask of each other if there's a dire need or या हमें अगर लगे कि भाई उनकी absolute ज़रूरत है. Otherwise we don't disturb each other in our everyday walk of life. वो अपना काम चला रहे हैं जब उन्हें चलाना होता है, हम अपना काम चला रहे हैं जब हमें चलाना होता है, and yet जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो then we are always there for each other also. Is there any specific reason we are, you know, pushing the, or you have planned in such a way to release the film post December? Even the central government, the state government working on the film to open the theatres. So it's a planned release of the film, or by the time you will get window open. Yes, it is a plan because Corona has lasted already 9 months, and it is a new way of life. This is the new normal. ये कल परसों तो ख़त्म होने वाला है नहीं. वैक्सीन्स आने वाली हैं बहुत जल्दी. Whether it is January or February, we know vaccination is going to come out. अब कल ही हमें न्यूज़ में पता चला कि शेख मोहम्मद of Dubai has taken the first vaccine of COVID. So the future is very bright. We know things are going to change. So I think it's a very good time to come out with the films and to start your launches or to start the promotions and the music. I think it's a good time. I think we are at the right time and at the right moment to do this. It means you are eyeing more theatre than OTT platform. We are eyeing both because right now OTT is as big or bigger. Theatres, theatrical releases have not met with 100% success with every star, whether they are big stars or small stars or new fresh faces. But we see that OTT is doing really, really well, digital. Aajkal, and especially because of Corona and COVID, everybody has been home. Nobody has ventured out in the last 8 months, 9 months. Everybody has been in the comfort of their homes, in their beds, in their pajamas, enjoying movies on their screens and on their television sets. So, you know, it's become the new normal. आप घर में पॉपकॉर्न बना रहे हैं या घर में चिप्स या वेफर्स या खाकराज या गाठिया जो भी आपको पसंद है, आप सब घर में अपने बेड में लेकर बैठे हुए हैं and you are enjoying the movies in the comfort of your own homes. So I don't think OTT is in any way smaller than this big silver screen. I think it is a good competition and I would be happy to bring this film on any of the platforms, whatever works best and whatever is most successful for the film. While we are talking, the good news is coming in. Theatres are opening by tomorrow in Maharashtra. Yes. I don't know whether you're aware or not. I just, you know. So like I said, this is the best time and it's a perfect time and I think we are timing it absolutely perfectly well. Thank you so much, ma'am. Thank you. फिल्म का पोस्टर देख के और जितना भी लोग अभी हमारे लोग हुए 90s के दौर की याद आती है क्या, और जब आपको ऑन बोर्ड लिया गया क्या ब्रीफ था मेकर्स का कि दे आर मेकिंग दिस
म्यूजिकल लव स्टोरी, वी हैव सीन सो मेनी म्यूजिकल लव स्टोरी, आशिकी 2 से लेकर आशिकी 1 और भी बहुत सी फिल्में हैं। आपको क्या ब्रीफ दिया गया था कि किस तरह की? See, this is a different type of musical love story. It's not just a musical love story. It's an action thriller musical love story. It's a mixture of action, thrill, and lots of songs and all. And it's a complete package of. जब ऐसा कहते हैं आप तो मुझे मलंग की याद आती है, जब रिसेंटली हमने देखी। Is the film similar to मलंग? It's not that type of thing because मलंग के साथ मलंग थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप से था। ये कंप्लीट बॉलीवुड पैकेज है जिसमें ड्रामा है, एक्शन है, आपका सब कुछ है। थिएटर खुलने जा रहे हैं कल से, मैंने भी टॉकिंग टू लकी जी ने ऐसा ये कितना अच्छा बेनिफिट होगा और कितना फायदा? ऑब्वियसली इट विल बी, मतलब थिएटर्स खुल रहे हैं, अगर ये थिएटर्स में अगर जैसे लक्की जी जैसे थिएटर्स में जाने के लिए अगर उनके डील्स हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एज ए न्यू कमर्स हमारे लिए तो बेनिफिशियल है। और OTT भी मतलब कुछ OTT भी ओपन है, OTT भी कुछ बुरा नहीं है, OTT में भी सेम चीज़ें हैं। तो कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के लिए। राहुल रॉय साहब की मतलब एक वक्त हो गया उनको बड़ी स्क्रीन पे और बहुत ईमानदारी से वो बात कहते भी। बिल्कुल। हमेशा से आपके जहन में राहुल थे इस किरदार के? somewhat kind of because नितिन के राहुल सर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, तो जिसकी वजह से ये करैक्टर जो है ये करैक्टर राहुल सर के लिए ही था। बिकॉज एक्सेप्ट राहुल सर बाकी कास्टिंग के लिए वी हैव टू फाइट, वी हैव टू ऑडिशंस एंड ऑल, बट राहुल सर वाज द थिंग जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, जब भी फिल्म रिलीज होती है तो क्या मिलने वाला है, क्यों वो आए और फिल्म का हिस्सा बने? कट मारना पड़ेगा इसके लिए। नहीं, बिकॉज आई नीड टू थिंक अबाउट इट। No, I'll let you, don't worry. This movie is a complete package. This movie has drama, action, and everything, and it's a complete masala film. It's a complete masala film. Thank you so much. Thank you.